أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ملك الحق المبين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والعصمة الفاطمية والصولة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقارة النقوية والحيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله بلندر صلوات پڑھیے گا. خدا نے متعال کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس فرش ازاں میں آئیں. یہ دور جدید اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے بہت سے چیلنجز، بہت سے امتحانات کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے. ہر دور میں مختلف طریقے کے امتحانات ہوتے ہیں. اس دور کے بھی کچھ ایسے امتحانات ہیں کہ جو جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہر انسان کے ساتھ امتحان چلتا آ رہا ہے. جیسے کہ ایک امتحان ہمارے نفس کا ہے اور ایک امتحان باہر سے کہ جو ہمیں شیطان باقاعدہ امتحان دے رہا ہے اپنی مختلف چیزوں کے ذریعے، کہ جس سے ذریعے سے وہ ہمیں لبھاتا ہے کہ تم گناہ کرو، اور پھر اس کے اوپر ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ خدا دیکھتا ہے کہ اگر یہ میرا بندہ ہے تو یہ کبھی بھی شیطان کی بات نہیں مانے گا. ایک بہت ہی انتہائی خوبصورت کتاب ہے کہ جو امام خمینی نے ایک شرح لکھی ہے کہ جس میں مارکا بیان ہوا ہے عقل و جہل کا، یعنی کہ عقل اور ابلیس کا مارکا بیان کیا گیا ہے کہ کون سے ایسے لشکر ہیں کہ جو اللہ نے عطا کیے ہیں عقل کو، اور ایسے کون سے لشکر ہیں کہ جو ابلیس کے ہیں. یعنی ہر کسی کے اپوزٹ ایک ساتھی ہے، اور پھر ان دونوں میں جو جنگ ہوتی ہے، جس طرح سے ان کا مبارزہ ہوتا ہے. اب یہ کتاب بہت بہترین ہے، بہت سارے لشکر ہیں، لیکن جن میں سے میں چند کا ذکر کروں گی کہ شیطان کے جو دو بڑے مارکے ہیں کہ جس میں ہم خواتین اسپیشلی بہت پھنستی ہیں، وہ ہے خوف اور لالچ. شیطان آپ کو اس ذریعے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. خوف کس چیز کا؟ سب سے پہلے تو موت کا خوف. دوسرا اپنا کوئی عہدہ چھن جانے کا خوف، اپنے دنیاوی کسی چیز کے کھو دینے کا خوف، مال کو کھونے کا خوف. اسی طرح جو لالچ ہے، کس چیز کی لالچ؟ کافی چیزوں کی لالچ ہوتی ہے انسان کو. مال کی لالچ ہوتی ہے، اولاد کی بھی لالچ ہوتی ہے. بہرحال مال جمع کرنا، مطلب مال کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ مال کمانے کے لیے اتنی لالچ کریں کہ آپ خدا نخواستہ حرام جگت کی طرف نکل جائیں کہ بس مجھے کمانا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، اور اتنا اپنے گھر والوں کو تنگ کریں، اپنے شوہروں کو، کہ وہ اگر حرام کمال کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس میں قصور ہم خواتین کا ہے. تو آپ مال کمائیں، کیونکہ جب انسان اہل ثروت ہوگا تبھی وہ ناداروں کی خدمت کر سکتا ہے، تبھی وہ اللہ کی راہ میں انفاق کر سکتا ہے، تبھی وہ بڑے بڑے امام بارگاہوں میں بڑی بڑی ایسے جگہوں پر خرچ کر سکتا ہے، یتیموں کی پرورش کر سکتا ہے کہ جہاں سے خدا نے بتایا ہے کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی کتنی فضیلتیں ہیں. مال کے ذریعے انسان یہ کام کرے، لیکن مال کو صحیح جگہ سے حاصل کرے، نہ کہ انسان حرام سے کمائے. زیادہ کمانے کے بارے میں قباحت نہیں ہے، لیکن آپ صحیح جگہ سے کمائیں. لیکن یہی پر شیطان آ جاتا ہے کہ وہ لالچ دلاتا ہے انسان کو، تاکہ انسان لالچ میں آئے، انسان خوف میں آئے، اور پھر وہ اللہ کی بندگی کو ختم کر دے. اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راہ میں وہ مشکلات پیدا کرتا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں ان ائمہ معصومین کی راہ سے بتایا، ان کے ذریعے سے ہمیں سکھایا کہ ہم شیطان کے اگینسٹ کیسے آ سکتے ہیں. چند مثالیں پیش کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم خواتین ہیں، ہمارے ہاں نئے نئے طرح کے فیشن نکلتے ہیں. عموماً جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنے والدین سے اظہار کرتی ہیں کہ اب ہمارا نیا ٹرینڈ آیا ہے، کپڑے جو ہے ان کا ڈیزائن چینج ہو گیا ہے. تو بہت ہر گھرانے میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بہت سے ایسی خواتین ہیں کہ جن کو ہوتا ہے کہ نہیں، اب بس پرانے کپڑے نکال دیے جائیں اور فوراً سے نیا والا فیشن بنایا جائے. اس کی وجہ سے وہ عموماً کبھی نہ کبھی اپنے والدین کو بھی اذیت دیتی ہیں. یہ بھی ایک قسم کا لالچ ہے تاکہ ہم ٹپ ٹاپ رہیں. حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے تو یہ لباس ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب اس کی انڈسٹریز اتنی نہیں تھی کہ جتنا اب آسانی ہو گئی ہے کپڑا بننے میں. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب زیادہ تر ہاتھوں پہ کپڑا بنا جاتا تھا اور بہت ہی عرصے کے بعد ایک کپڑا بنتا تھا، اور اس زمانے میں
जो लोग कपड़े पहनते थे वो बड़े बड़े चोगे होते थे। खवातीन, चाहे जरूरी नहीं है कि मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ, अगर आप पुराने अंग्रेजों में भी देखें तो उनके भी लिबास पूरे होते थे। लेकिन अब जबकि बहुत आसानी से कपड़ा हमें हासिल होने लगा है तो हमारे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। खवातीन में शर्म हया कम होती जा रही है। बल्कि अगर आप कभी देखें टीवी में तो बाकायदा तौर पर मर्दों के ज्यादा कपड़े आ गए हैं, उनके कपड़ों में दुपट्टे भी आ गए और औरतों के कपड़ों के दुपट्टे निकल चुके हैं। आजकल टू पीस आने लगा है कि बस शलवार ली, कमीज ली, अब दुपट्टा जिसकी मर्जी है पहने ना पहने। बड़े शहरों में तो ये हालत हो चुकी है कि दुपट्टा सिरे से ही गायब कर दिया गया है। हत्ता कि इस वक्त कपड़ा बनाना सबसे आसान काम है। तो ये किसका काम है? ये कौन है कि जो हमारे अंदर इस तरह की चीजें राइज कर रहा है? ये वो शैतानी फिक्र है कि जो आहिस्ता आहिस्ता डाली जा रही है इसी लालच के साथ। इंडस्ट्रीज, बहुत आसान है आजकल कपड़ा बनाना, लेकिन हम लोगों में शर्म हया खत्म हो चुकी है। हम लोगों में, क्योंकि दीन नहीं रहा, वो इस्लाम नहीं रहा, वो अल्लाह का फरमान हमने नहीं लिया, इसीलिए आजकल जैसे कि शादी ब्याह के मौसम होते हैं उसमें लोग कहते हैं कि हर हर फंक्शन के लिए अलग अलग जोड़ा। अब माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकते तो बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि हर वक्त के लिए एक जोड़ा, और फिर वो जोड़ा रख दिया जाता है, पता कितने सालों वो जोड़ा पड़ा रहता है। क्योंकि जाहिर बात है गर्मी के अयाम है, खवातीन यही कहती हैं अब इतने गर्म मौसम में हम कैसे कपड़े पहने, तो वो 3-3, 4-7 साल रखे रह जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। और उन चंद कपड़ों के लिए कि जो सिर्फ नमूदो नुमाइश का जरिया है, उसके लिए हम अपने वालिदैन को तंग करते हैं। हो सकता है कि बाप कर्जा लेकर वो कपड़े बनवाएं, और कभी कभी तो ये हालत हो जाती है कि घर का मर्द हराम कमाने पर मजबूर हो जाता है। तो इसीलिए खवातीन इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि हमारे कपड़ों में सबसे पहले तो फहाशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने में कपड़ों को तन ढांपने के लिए बनाया जाता था। रिवायात में जैसे है कि जितने भी पुराने जमाने की आप वाकयात पढ़ेंगे उसमें यही था कि कपड़ा सिर्फ और सिर्फ तन ढांपने के लिए, जब कपड़ा नहीं था तो पत्तों से तन ढांपा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हुई और उसके बाद इंसान ने कपड़ा बनाया, लेकिन कपड़े का मकसद था ताकि हमारा तन ढक जाए, और आजकल कपड़ों का मकसद है ताकि हम फैशन कर सके। नाउजुबिल्लाह, तो मुहर्रम में भी फैशन शुरू हो चुका है। अल्लाह ना करे कि हम लोगों में ऐसी चीज हो। ये कहने को कौन तरक्की कर रहा है? इंसान। ये तो शैतान तरक्की कर रहा है। इंसान की अगर तरक्की होती तो उसका लिबास और बढ़ना चाहिए था, लेकिन लिबास कम होता जा रहा है, हम हैवानियत की तरफ जा रहे हैं। ये शैतान है जो तरक्की करवा रहा है हमारे से। कहने को तो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई है, बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम आ गए हैं, लेकिन कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। शलवारों में कपड़े की जगह पर लेस लगनी शुरू कर दी है ताकि पूरी की पूरी आपकी टांग नजर आती है। आस्तीनों में पूरी आस्तीन नेट की है, क्या फायदा, पूरा आपका हाथ नजर आ रहा होता है। कहने को आस्तीन आपने यहाँ तक पहनी भी है लेकिन नेट की है, कोई फायदा नहीं। आप जिस भी मर्द के सामने जाएंगे आपका पूरा बाजू नजर आएगा। हत्ता कि खातून के सामने भी ठीक है पर्दा नहीं है, लेकिन एक इंसान के अंदर शर्म हया होती है। खवातीन के सामने भी इंसान को अपनी शर्म हया को बाकी रखना चाहिए। तो ये शैतान की लाइन है कि हमें फैशन में लगाकर, हमें फैशन के साथ साथ हमें लालची बनाया, क्योंकि जहां पर फैशन बढ़ेगा, जहां पर आपको ज्यादा कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, तो जाहिर बात है आपके घर वाले और आप पैसे की लालच भी करेंगे, मजीद पैसे की लालच के लिए फिर हराम की तरफ भी जाएंगे, और जब हराम माल आपके पेट में जाता है तो फिर आप हिदायत की बात आपके दिल तक नहीं पहुंचती है। क्योंकि रिवायात में है कि जिन जिन लोगों ने हराम खाया है, आइम्मा की बात उन लोगों ने नहीं सुनी है। तो ये लालच का जाल फेंकता है शैतान। और हम कि जो इमाम जमाना के सिपाही बनना चाह रहे हैं, अब हम जब इमाम के सिपाही बनना चाह रहे हैं तो इस लालच के और इस खौफ के सामने, इस लालच के सामने खुदा का भी तो कोई हथियार होगा। कि जैसे मैंने कहा कि इमाम खुमैनी की किताब में अगर शैतान के लश्कर के बारे में बताया है तो फिर खुदा के लश्कर का भी बताया है। तो इसी लालच के सामने हमारे लिए अल्लाह ने जो लश्कर पैदा किया है वो है
पनाहत का लश्कर। हमें खुदा ने हमारी आइम्मा मासूमीन की हस्तियों में, इनकी तारीफ में जाएं तो पनाहत है। हमारे इमामों की जिंदगियों में देखें, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी में देखें, इमाम आपको कहीं पे भी इसराफ, फहाशी, फैशन ये आइम्मा की जिंदगी में नजर नहीं आएगा। इसी तरह अज़ीज़ान मोहतरम, हत्ता कि ये आलम है कि नबी के जमाने में एक शख्स पानी का एक गिलास, जैसे अमूमन हम आधा पीकर उसको जमीन पे फेंक देते हैं, एक शख्स ने इस तरह फेंका तो रसूल ने इसकी ममानियत की है। उन्होंने कहा कि ये सही चीज नहीं है, ये पानी का ज़ियान है। हत्ता कि उस जमाने में पानी वाफिर मिकदार में मौजूद था। कोई आज के जमाने में कहे तो सुनने में आ रहा है पाकिस्तान, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में जगह जगह से पानी की किल्लत होती जा रही है। बड़े शहरों में तो हो चुकी है, अब छोटे शहरों में भी आहिस्ता आहिस्ता है। लेकिन उस जमाने में जब पानी वाफिर मिकदार में था, रसूल ने कहा ये तुम्हारा पानी का जमीन पर फेंकना ये भी इसराफ है। यहाँ तक बयान किया गया है कि जो हम फल खाते हैं उसकी जो गुठलियां होती हैं उसको फेंको मत, कहीं बो दो, जब एक दरख्त निकलेगा तो ये भी चीज इसराफ है। हत्ता कि किसी मासूमीन के उसमें फरमान में मैंने कहीं पढ़ा था कि क्योंकि इमाम के जमाने में ऊंट वाफिर मिकदार में हुआ करते थे, तो वो हमेशा कहते थे कि जो गुठलियां तुम छोड़ देते हो वो तुम ऊंटों के खाने के लिए रख लिया करो, क्योंकि शायद ये जानवर ऐसे होते हैं जो इनको खा जाते हैं। तो ये भी इमाम कहते हैं कि ये चीज ज़ियान है, ये आपका, ये आप इसके लिए आपको काम करना चाहिए कि कोई भी चीज आपके पास से जाया ना हो। हम लोग तो पता नहीं कितनी चीजें ऐसी हैं कि जाया कर देते हैं। कनाअत सिखाई है, कनाअत का मतलब है कम खाओ, कम खाने का मकसद कनाअत नहीं है, जितना खाना है उतना खाओ, बस चीज को जाया मत करो। इसी तरह एक वाकया जनाबे अबू ज़र गफ्फारी का बयान करना चाहूंगी। जनाबे अबू ज़र की शान में बुलंदतर सलावत। जनाबे अबू ज़र को हम सब जानते हैं, सहाबी रसूल हैं, लेकिन उनके बारे में ये है कि वो एक ऐसी हस्ती थे कि जो अपने जमाने की हुकूमत को, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह से लेकर आगे तक के आइम्मा के जमाने भी देखे, उस वक्त ऐसी हुकूमतें थी कि जो बागी थी, और उन हुकूमतों के बारे में वो साफ मुंह पर उनके कहा करते थे कि तुम बैतुल माल खा रहे हो, तुम चीजों को जाया कर रहे हो, और वो खुलेआम बोलते थे। तो जब वो ऐसे क्रिटिक्स करते थे तो बयान किया जाता है कि मदीने की जो गवर्नमेंट है, मदीने की जो हुकूमत थी, वो उनके बातों से तंग आ गई थी, क्योंकि उनके पास उनके जवाब नहीं थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान करते थे, और जो वो चीजें खराब कर रहे थे, बैतुल माल से अपने खुद से पैसा उठा लिया, तो उसके लिए वो रोका करते थे उस वक्त की हुकूमत को। तो इन्होंने तंग आकर जनाबे अबू ज़र को मदीने से शाम की तरफ रवाना कर दिया। अच्छा, इस हालत में रवाना किया कि उनको एक जंगली ऊंट के ऊपर रस्सियों से उनकी टांगे उस ऊंट के साथ बांधी है और उसको भेज दिया। अब एक जंगली ऊंट है, उसको तो जाहिर बात है जंगली किस्म का जानवर है, वो जब तक शाम पहुंचा है तो रिवायात बयान करती है कि जनाबे अबू ज़र की टांगों का गोश्त उतर चुका था। तो हमें तो यही होगा कि भाई कुछ दिन आराम करेंगे, लेकिन जैसे ही वो शाम पहुंचे हैं उसी दिन से उन्होंने उस हुकूमत को भी ये बावर कराना शुरू किया कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तुम गरीब का हक खा रहे हो, तुम जो बैतुल माल से पैसा निकाल रहे हो ये गलत है। यानी जितनी भी चीजें जो हुकूमत के कारिंदे गलत कर रहे थे उनको टोकना शुरू किया। अब वहां के गवर्नर को परेशानी लायक हुई कि आखिर क्या करे इस शख्स का। एक शख्स उस गवर्नर के पास आता है कि तुम मुझे सिर्फ 30,000 दिरहम दो, यानी उस जमाने की एक बड़ी रकम थी। वो कहता है तुम मुझे 30,000 दिरहम दो, मैं इसका इलाज करता हूँ। वो बाकायदा एक तोहफे के तौर पर उसके लिए लेके गए जनाबे अबू ज़र के लिए, और जनाबे अबू ज़र से कहा कि ये मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। जनाबे अबू ज़र ने पहले तो मना किया, कहते नहीं सिर्फ ये तोहफा है और कुछ भी नहीं है, चलो हम दोस्त बनते हैं। जनाबे अबू ज़र ने कहा वाकई ये मेरे लिए तोहफा है? हाँ जी। अब जनाबे अबू ज़र क्या करते हैं, क्या उन्होंने अपने लिए लिया? करते क्या उन पैसों का, वो गए शहर के बीचों बीच और जितने भी फकीर थे सबको सदाएं दी, सबके सब इधर आ जाओ, सारे के सारे पैसे उन्होंने फकीरों में बांट दिए। वो शख्स कहता है कि कुछ तो अपने लिए रखते, कह देंगे मेरे पास, क्योंकि एक ऐसा बस्ता था जो उनके पास उनका अपना था। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो मुझे चाहिए, जो मेरा कीमती असासा है वो इस बस्ते में है। अब इस शख्स को हुआ कि जरूर इसके पास सोने चांदी की चीजें होंगी,
या कोई हीरे जवाहरात होंगे। उसने कहा चलो मैं इससे दोस्ती करता हूँ। अब चलता रहा साथ में, आखिर उसको बीच में मौका मिला और जब उसने वो बस्ता खोला है उसमें से 2 सूखी रोटियां मिली उसको। वो शख्स कहता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 सूखी रोटी है। कहता है हाँ, एक रोटी मेरे दोपहर के खाने के लिए है, एक रोटी मेरे रात के खाने के लिए है। बस जिस अल्लाह ने मुझे दोपहर और रात का खाना दे दिया है, मुझे और क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस अल्लाह ने मुझे आज के दिन का खाना अता कर दिया है, वो अल्लाह मुझे आगे के दिनों में भी अता कर देगा। और जब मेरी मौत होगी, जाहिरी बात है, तब मेरा रिस्क भी रुक जाएगा। इसे कहते हैं तवक्कुल, इसे कहते हैं कनात। ये होते हैं कि जो मौला के शदाई होते हैं, ये होते हैं कि जो करबला तक फिर जाकर शहीद होते हैं। ऐसे ही इंसान को जब मौत से कोई घबराहट नहीं होती ना, जब मौत से खौफ नहीं होता, तो वो इंसान बहादुर बनता है। रिवायात में है कि मौत की तैयारी करो। क्यों रिवायात में है? हमें जो डराया गया है वो ये डराया गया है कि अपने नाम अमाल से डरो, कि अगर हमारा नाम अमल सही नहीं होगा तो फिर आखिरत में, क्योंकि खुदा ने जन्नत भी रखी है, जहन्नुम भी रखी है, अल्लाह से तो मोहब्बत दिलाई गई है, बहादुर बनाया गया है कि मौत से मत डरो, मरना तो सबको है, कोशिश करो तुम्हारी मौत शहादत की मौत हो। हमारे सामने कितने शहीद हैं हमारे जमाने के, उनका अगर आप जिंदगी देखें तो ऐसी आशिकाना जिंदगी है। वो खुद कहते हैं कि हमें जो कुछ मिला है इस दरे हुसैन से मिला है। ये वो है कि जैसे हसन नसरुल्लाह कहते हैं ना कि मैं अली वाला हूँ, मुझे हर चीज इस दर से मिली है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंज़ाने मोहतरम, जब करबला से हुसैन का काफिला निकला है, जब सफर में अभी चलना शुरू किया था कि अब्बास इमाम हुसैन से कहते हैं कि मौला एक छोटा सा काफिला है जो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। रिवायात में है कि जनाब अब्बास को इमाम हुसैन ने भेजा और वो कहते हैं कि मौला ये शख्स कह रहा है कि मैं सहाबी रसूल हूँ, बस नाना का नाम सुनना था कि हुसैन उस शख्स के पास पहुंचे हैं। रिवायात में है कि वो शख्स अब्दुल्ला इब्ने उर्वा गफारी नाम का शख्स है। काफिला बहुत मुख्तसर सा, एक गुलाम है, एक बेटा है और एक वो खुद सहाबी है। जब इमाम हुसैन नाना का नाम सुनते हैं, फौरन से उसके पास जाते हैं, पूछते हैं कि ऐ सहाबी रसूल, क्योंकि बहुत बुजुर्ग हैं, इतने बुजुर्ग हैं कि हाथों में राशा है, जैसे बुजुर्ग के हाथ हिलते हैं राशा उनमें तारी है, शदीद चेहरा जो है वो जैसे बुजुर्गों का होता है, बाल सफेद है। वो रसूल इमाम हुसैन कहते हैं कि ए सहाबी, आपका कहाँ का सफर है? कहा कि जब आप छोटे थे और मस्जिद में आए थे और आपका कुत्ता पैरों में चला गया था और आप गिरने लगे तो रसूल अल्लाह ने आपको उठाया, अपना खुतबा रोका और फिर अपनी गोद में बिठाकर हमसे फरमाया कि जब हुसैन मदीने से निकलेगा तो समझ जाना कि ये मेरे हुसैन का आखिरी सफर है। उस वक्त जो जो हयात हो, जो जिंदा हो, वो मेरे हुसैन के साथ जाए। बस मैं आपके पास आया हूँ ताकि वो कुर्बानी अता कर सकूं, क्योंकि हमने आपके नाना से वादा किया था। बस अल्लाह अजर दे सहाबी को। इमाम हुसैन कहते हैं आइए हमारे काफिले के साथ मिले, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मौला, आपके काफिले के साथ नहीं, आप तो इमाम है, आप आगे चलिए। मौला अब्बास से कहते हैं, अली अकबर से कहते हैं इनको लेकर आओ, लेकिन आखिर में ये नहीं सी आवाज भी कहता है मौला आपके साथ नबीजादियों भी है, हम नबीजादियों का एहतराम जानते हैं। अरे मैं गुफैर से कहूंगी कि काश तुम करबला के बाद देखते कैसे नबीजादियों की चादरें उतारी गई है। मोहतरम कल 9 मुहर्रम का दिन होगा, इमाम हुसैन एक एक करके सब शहीद हो रहे हैं। कासिम शहीद हो गए, अली असगर भी शहीद हो जाएंगे। अजीज़ाने मोहतरम, आज अली अकबर की मसाइल पढ़ने की कोशिश
الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب